Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Libra Ascendant and the predictions for the month of July 23. Now for Libra Ascendant, the Ascendant Lord Venus is going to transition in the 11th house from 7th of July to 6th of August, and it is going to combine here with Mars. That is not only the natural significator of lands and properties, but in the case of your ascendant, it is also the ruler of second house, which is the house of self-earned wealth, and seventh house, which is the house of business. Mars as well as Venus, both of them are combining in the 11th house, which is the house of gains, which means that this month is all about gains for the Libra ascendant people. It is about making investments which could be related to land or property, or making capital expenditure in your business. Libra ascendant people have a huge quality that they are exceptionally good business people who always try to get benefits from the profit of other people, and that is why these people are able to succeed in business. They have a long term vision, and that is why month of July is going to be a very good time to make the capital expenditures that are related to business. This month is going to give you social recognition and accolades at the workplace depending on the hard work that you would have put in the month of June. You will have a very good time with your family members, especially elder brother or sister, friends, and enjoy the company of those who are a part of your social network. And all of this is going to happen because both your ascendant lord as well as the lord of second are combining in a very powerful position of house of gains. Now, if you happen to be in the business that are related to food, restaurants, finance, banking, then all these businesses are going to get immensely benefited in the second half of July. So time frame from 16th to 31st of July is going to be very prosperous for the businesses that I just mentioned, and they are going to have a jolly good time in the month of July. If you are a student, then the first 10 days of July are going to be very favorable for you for clearing competitive exams. So 1st to 10th July is the time for exceptional performance from the students. And if you are in speculation, then also only the first 10 days are beneficial for you. So try to take all your bets before 10th of July. Now, looking at Jupiter, Jupiter is the owner of sixth house and rules over service. So, if you want to excel in your job, then the time frame from 7 to 17th of July is very favorable for you. Jupiter is also combining with Rahu in the seventh house. It is sitting in the seventh house and opening doors for you to get married. But you should wait till the end of October to get hitched because Rahu here is going to spoil the significators of the seventh house. But if you want to get married intercaste, or if you want to get married to a foreigner, then the time frame is absolutely fine for you because Rahu supports everything that is alien to our culture. But if you want to get married within the same caste or religion, then you should wait till the start of November. So if you look overall, the month is looking very positive for the Libra ascendant people, and it is high time for all of you to reap the gains for the hard work that you have done in the past months, but especially in the month of June. So that's the summary for you for the month of July. Enjoy this month, and if you like my video, please do subscribe to my channel. Thank you very much for watching this video. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि तुला लग्न वालों के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, तुला लग्न के लिए लग्नेश शुक्र 11वें भाव से भ्रमण कर रहे हैं और यहां पर इनकी युति मंगल के साथ होने वाली है जुलाई के महीने में, जो कि द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव से आप अपना परिवार और स्वयं का कमाया हुआ पैसा देखते हैं, सप्तम से आप अपने बिजनेस को देखते हैं या अपने पार्टनर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर शुक्र का मंगल के साथ युति, मंगल एक सिग्निफिकेट है नेचुरल भूमि का, जमीन जायदाद का। तो इस महीने में जुलाई के अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि जमीन जायदाद से संबंधित है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो उसमें आपके लाभ होने की भरपूर संभावना है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस में हैं
तो आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करना पड़े जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो वो भी आप इस महीने में ज़रूर कर सकते हैं। तुला लगने के लोग एक नेचुरल बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि हमेशा सामने वाले का फायदा कराने के बाद उसमें से अपना गेन लेते हैं, और इसीलिए तुला लगने के लोग काफ़ी ऊंचा उठते हैं अगर वो बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पे इस महीने में आपको आपके परिवार से, आपके मित्रों से और आपका जो भी सोशल सर्कल है उससे आपको तारीफ मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगा, और आपको आपके कार्यस्थल पे भी प्रशंसा मिलेगी। और ये इसीलिए होगा क्योंकि जब लग्नेश आपका दशम में था जून के महीने में, तब आपने जो भी मेहनत की होगी उसका परिणाम आपको जुलाई के महीने में मिलेगा। आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अगर आपके भाई बहन हैं तो उनके साथ मित्रों की कंपनी आप एंजॉय करेंगे, और आपके सोशल नेटवर्क में भी जिन लोगों के साथ आपको समय बिताना अच्छा लगता है उनके साथ भी आप इस समय में अपना समय व्यतीत कर पाएंगे। आपके लगने के लिए जैसा मैंने कहा कि सप्तमेश मंगल है और वो भी 11वें में कंबाइन कर रहे हैं शुक्र के साथ। तो अगर आपका बिजनेस खाने पीने से संबंधित है, जमीन जायदाद, स्पेशलिटी केमिकल्स, रेस्टोरेंट्स, फाइनेंस, बैंकिंग, अगर आप इन सारे सेक्टर्स में काम करते हैं, आपका स्वयं का बिजनेस है इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ, तो जुलाई का सेकेंड हाफ आपके लिए बहुत अच्छे और बड़े गेंस लेकर आएगा। खास करके 15 से 31 जुलाई तक का समय में आपके वारे नारे हो जाएंगे अगर आप इन बिजनेसेस के साथ जुड़े हुए हैं तो। अगर आप छात्र हैं तो जुलाई के महीने में पहले 10 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए। और इस महीने में इन 10 दिनों में अगर आप किसी भी परीक्षा में उतरते हैं तो उसमें आप 100% सफल होंगे, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आप शेयर बाजार से संबंध रखते हैं तो देखिए, पंचमें शनि अपने ही भाव में बैठे हुए हैं, तो पंचम भाव तो आपका वैसे भी मजबूत हो रहा है, लेकिन शनि आपको कोई भी परिणाम आसानी से नहीं लेने देते, बहुत मेहनत कराते हैं। तो जितने भी लोगों ने शेयर मार्केट को सादा है, अच्छे और गहराई से समझा है, और जो एक डिसिप्लिन में रह के ट्रेडिंग कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके लिए जुलाई के पहले 10 दिन बहुत अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। पहले 10 दिनों में ही लाभ होता हुआ दिखता है, तो उसके बाद अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लगने के लिए गुरु अकारक होते हैं, क्योंकि वो तृतीय और छठवें दोनों ही दुष्कारक भावों के स्वामी होते हैं। यहाँ पर गुरु सप्तम भाव में राहु के साथ बैठे रहेंगे। सप्तम भाव से आप अपने पर्सनल पार्टनर को भी देखते हैं, तो जितने भी लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए गुरु गोचर में सप्तम भाव में बैठ के हरी झंडी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर शादी के योग तो बनते हैं, लेकिन चूंकि राहु यहाँ बैठे हुए हैं तो वो सप्तम भाव से जुड़े हुए परिणामों को खराब करेंगे। इसमें एक ही कंडीशन आप एक्सेप्शनल बोल सकते हैं कि अगर आप ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं जो फॉरेनर है, या फिर वो आपके कास्ट से बिल्कुल ही संबंध नहीं रखता, जैसे कि एक पंजाबी एक केरला या आंध्रा में रहने वाले व्यक्ति से शादी कर रहा हो, तो उसके लिए वो कल्चर भी एलियन ही होता है। तो अगर आप स्वयं की कास्ट में शादी ना करके बाहर देश में किसी बाहर की कास्ट से शादी कर रहे हैं या फिर फॉरेनर से शादी कर रहे हैं, तो फिर ये कॉम्बिनेशन आपको हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि राहु स्वयं ही अंतरजातीय चीज़ों का या एलियन चीज़ों का कारक होता है। लेकिन अगर आप स्वयं के रिलीजन या कास्ट में शादी करना चाहते हैं तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक रुक जाइए, नहीं तो फिर ये राहु आपका काम खराब करने का कार्य करेगा। अगर आप इसके अलावा देखेंगे अभी तो स्थिति बहुत ही अच्छी बनी हुई है ग्रहों की, और आपके लिए ये बहुत आइडियल समय है अपने कार्य क्षेत्र से जो भी आपने मेहनत की है उसके गेन्स कमाने का, और आपके जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं उनसे लाभ कमाने का। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से भी आप पैसा बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट करते हुए आना चाहिए। वो जो सबसे शानदार इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी में ही रहेगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी काफ़ी समय से कोई ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी फंसी हो, उसका आपको इस समय में ताबा या पोजीशन मिल जाए। तो ये आपकी समरी है इस महीने की जुलाई की। ये पूरा महीना ही आपके लिए अच्छा है लाभ कमाने की दृष्टि से, तो इस महीने को एंजॉय करें। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।